Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So each one of us is passing through a difficult time, and negative news is coming from many fronts, and it is very difficult to focus in these days on studies. And to remain focused, we need one daily dose of some positive news which gives a ray of hope. And I am trying to search such news for you and share with you, so that your morale remain high. It is well known we are passing through a difficult phase, but this difficult phase will not remain as it is forever. It has to pass through. So today, World Economic Forum, an international agency, has given a good news on their Facebook page. They are saying that the number of new cases had started falling in Italy, France, and Spain, and these countries may lift lockdown in gradual fashion soon. Now you look at Italy. Lockdown started on 9th March. So they are going to lift lockdown from May. In France, it is to be lifted from 11th May. In Spain, it started on 14th March, and from 2nd May they may start lifting of ban. So if we look in all these countries, so almost these countries remained in lockdown for around 60 days. And after 60 days, a ray of hope has come that now number of cases started falling. So if we go by this model, in India also we are going to finish 40 days on 3rd of May. And if this model is to be followed, that means we also have a hope in 50 days or 60 days time from the day of start of our lockdown. In some of the states, the lockdown started on 22nd March. In other states, it has started from 25th March. So if we go by the trend that is emerging in Western world, we see a ray of hope that the number of cases may also start falling in India in next 20 days from now. So because in most of the Western countries like Italy, France and Spain, these are now showing declining trend after about 50 days. So we are already on the 40th day on 3rd May. So if we add 10 to 20 days more, we can see fall in cases. If that happens, we can be hopeful about lifting of lockdown. So hope is always a golden word to remain focused. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. हम सब लोग बड़ी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं. रोज नेगेटिव न्यूज़ आती है और मन को विचलित भी करती है, और हमारा पढ़ाई में मन लगाने से हमें हटाती भी है, और फिर हमें मन भी लगाना है पढ़ाई में. तो अब मेरी कोशिश ये होती है कि आपको कोई ना कोई ऐसी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढ के दूं जिससे आपका मन लगा रहे पढ़ाई के अंदर. देखो, इस पीरियड को पास करना ही सबसे मुश्किल पीरियड काम है. अगर हम इस पीरियड को पास कर गए तो हम सक्सेसफुल भी हो जाएंगे. अब आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अपने फेसबुक पेज पे एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ प्रिंट किया है. वो क्या है कि इटली, फ्रांस और स्पेन 3 कंट्री ऐसे हैं जहां अब ये केसेस गिरने शुरू हो गए, नए केसेस, और ये तीनों कंट्री अपना लॉकडाउन हटाने की तरफ सोच रहे हैं. अब आप ये देखिए, इटली में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 9 मार्च को, और लगभग 3 मई से वो इसको कम करने की सोच रहे हैं लॉकडाउन को. फ्रांस में 11 मई से लॉकडाउन में ढील देने की सोच रहे हैं.
और स्पेन में 14 मार्च को ये लगा था लॉकडाउन, और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ मई से इसको कम करने की सोच रहे हैं। अब इन सब कंट्रीज में यदि हम देखें तो लगभग 50 दिन ये लॉकडाउन वहां चला है, और उसके बाद केसेस वहां गिरने शुरू हो गए हैं, और अब वो लॉकडाउन को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भारत में भी 40 दिन का लॉकडाउन हो जाएगा 3 मई को। उसके अंदर यदि हम 10 और 20 दिन जोड़ें तो हम भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि 13 मई या 23 मई के आसपास हिंदुस्तान के अंदर भी नंबर ऑफ केसेस गिरने शुरू हो जाएं, अगर यही ट्रेंड फॉलो होता है। क्योंकि वहां तो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए थे, फिर भी गिरने शुरू हो गए। अभी इंडिया में फिर भी कंट्रोल्ड है, लेस देन 2000 पर डे एडिशन है, इतना बड़ा कंट्री है, और उसमें भी कुछ स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड आई है। अगर हम देखें तो लगभग 26 से 27% खाली महाराष्ट्र है, उसके बाद सेकंड वर्स्ट हिट है गुजरात, फिर थर्ड है दिल्ली। तो यदि हम देखें तो कई स्टेट ऐसे भी हैं जहां बहुत कम केसेस है, नेग्लिजिबल केसेस है, तो ये पॉजिटिव साइन है। तो अगर हम इस चीज़ को देख के चलें कि भाई जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा फैल गया था वहाँ भी अब गिरावट आनी शुरू हुई है, और अगर वही ट्रेंड इंडिया में फॉल करता है तो 13 मई और 23 मई के आसपास एक आशा की किरण है कि इंडिया में भी ये केसेस गिरने शुरू हो जाएं। अभी तो गिरने नहीं शुरू हुए हैं, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे आकर आंकड़ा अटक गया है, 1600 से 1800 के बीच पर डे ऐड हो रहे हैं। पर फिर भी एक आशा की किरण है कि अगर दूसरे देशों में गिरे हैं तो हमारे देश में भी गिरेंगे। तो हमें अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखे रहनी है, क्योंकि जिन कंट्रीज में भी लॉकडाउन लगा है कोई अनिश्चित काल तक नहीं चला पा रहे हैं। वो लोग भी एक निश्चित अवधि के बाद, अधिकतर देशों में 50 से 60 दिन के बाद, उसके अंदर ढील देनी शुरू हो चुकी है। भारत में भी 20 अप्रैल से कुछ एरियाज में ढील दे दी गई है ऑलरेडी। तो अगर हम इस मॉडल से चलें तो हमारे भी जो 50 दिन पूरे हो जाते हैं 13 मई को, 60 दिन पूरे हो जाते हैं 23 मई को, 3 मई को नया डिसीजन आना है कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या किन एरियाज में बढ़ेगा। तो जो हमारी होप है कि एग्ज़ाम होंगे और कब होंगे, ये अलाइव है। तो कई न्यूज़ आती है जी कोई उम्मीद नहीं है, इन चीज़ों पे मत पढ़ो। आप अब अपनी पढ़ाई जारी रखो, धीरे 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 इसमें कंटेनमेंट होगी। पूरे विश्व में कंटेनमेंट हो रही है। जैसे आज की मैंने न्यूज़ बताई है, 3 बड़े कंट्रीज जहाँ बहुत ज़्यादा केसेस थे वहाँ फॉल होना शुरू हो चुका है। तो भारत में भी फॉल होगा, और अगर भारत में फॉल होना शुरू हो जाता है केसेस का, और लोकलाइज कर पाती है गवर्नमेंट, कुछ ही एरियाज तक निश्चित कर लेती है, तो लॉकडाउन भी खुलेगा ही। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।